हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्वाइन एवरीवन फास्ट फटाफट ज्वाइन करिए आप सभी लोग, एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन आउटसाइड बैच बिकॉज दिस बैच इज स्टार्टेड फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज द कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 100 मार्क्स के लिए आप इसे ज्वाइन करिए। Well, this is the crash course in which you will do a lot of question practice as well as you will be able to learn a lot of concept related to organic chemistry, which will be very helpful for cracking your exam. So don't forget to join me and don't forget to follow me on app. Okay, so let's start and join UGC CSIR नेट की प्रिपरेशन करने के लिए join an academy platform because you will get unlimited live and recorded courses from India's best educator, and you have a great opportunity to learn with the India's best educators. So join an academy learning platform. Today we are going to discuss about the multinuclear NMR spectroscopy, or the part third. Maybe this is the last lecture of the multinuclear NMR spectroscopy. Join everyone fast. Before starting my class, I want to tell you about the Unacademy platform. After joining Unacademy platform, there is a lot of special class features that included in on our platforms. You can get interactive live classes by attending live classes and participate in live chat. You can ask your doubt in live classes, and you can also participate in a poll option is one of the best options because after participation of poll you can easily understand the how many times will be required to respond in a question with respect to any examination, which question should take how many times. This will be very helpful to managing time during your examination. You can ask any your doubts during live classes after raising your hand. This is the one of the best option available for all of you. And never miss a class because you will be get a notification regarding upcoming courses and upcoming classes. You can easily download free lecture notes and free PDFs of the classes, and learn from anytime anywhere. If you have an internet connectivity, either you can watch a recorded video if you are unable to attend live classes. Okay, there is a two types of subscription available on our platform, Plus I and Iconic. The Iconic has a special feature in compared to Plus. In case of Iconic, you will be get a personal coach. Personal coach will help a lot to understand the examination pattern and cracking the examination very easily. And you can ask your doubt. You have an extra personalized doubt solving facility, and you will be get extra preparatory study materials for your examinations, and you will get an interview preparation facility will be included in Iconic in comparisons to Plus. The similarity is what the India's best educator available in Plus as well as in Iconic. Interactive live classes provided in both Plus and as well in Iconic. Structure course and PDF will be available in both Plus and Iconic. Live test and quizzes facilities are available in both Plus and Iconic. When we are talking about the fee structure and duration of the courses, the Plus courses duration is a 24-month, 12-month, 6-month and 3-month. And the fee of the 24-month course is 17,000 rupees, that is 708 rupees per month, and 12-month courses fee is 12,325 rupees, and per month fees is 1,027. 6-month course fees is 9,860 rupees, and per month 1,643 rupees. 3-month course fees is 6,250 rupees, and per month 2,083 rupees. You will be get a maximum discount after using this referral code AKRISS10. So don't forget to use the referral code for maximum discount. When I'm talking about the Iconic subscription, the Iconic subscription is a 24-month, 12-month and 6-month. The fee of the 24-month subscription is a 45,000 rupees, and 12-month subscription is a 26,000 rupees, and 6-month subscription is a 18,000 rupees. If you will be use a referral code AKRISS10, then you will be get a maximum discount on this fee structure. Good evening everyone. Good evening Gomti. Good evening Kushum. कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोग बढ़िया? आप पेमेंट कर सकते हो यूजिंग योर कार्ड, क्रेडिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड. यू कैन आल्सो पे विद नेट बैंकिंग. इफ यू हैव अ रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी देन यू कैन आल्सो पे विद योर रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी. ईएमआई अगर आपने सेलेक्ट किया है 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज पे, देन यू कैन आल्सो पे विद योर क्रेडिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड. आफ्टर अप्लाइंग रेफरल कोड यू विल बी गेट
कितनी फीस पे करनी है पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड विद कंप्लीट डिस्काउंट के साथ आपको ये फैसिलिटीज मिल जाएगी। मेगा ऑफर है सभी एस्पायरेंट्स के लिए। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करिए, 2 मंथ एक्स्ट्रा पाइए। 13 सितंबर तक जो है ये ऑफर अवेलेबल है, तो सभी लोग इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाइए। बक्स बाउंटी एंड अप्रोप्रिएट कंटेंट आइडेंटिफाई करिए, वीडियो में क्लेम करिए और प्राइज जीतने का मौका है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। आई थिंक द सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से अच्छा क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सेशन आपका है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करिए भैया। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जिनके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करिए और अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी एज वेल एज योर कॉन्सेप्ट लर्निंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करिए। कुछ नया भी सीखेंगे। पुराना जानते हैं तो पुराने से ही करिए, पुराना जान के देखिए कि आपका पुराना कितना धारदार है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलो आरजू, गोमती, कुसुम, एवरीवन, सभी लोग बढ़िया हो? नाउ हम इसी को आगे प्रोसीड करते हैं और आपसे पूछेंगे कि आपको बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लोरीन 19 एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ टंगस्टन के इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है। आपका ये टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स है। फ्लोरीन 19 एनएमआर स्पेक्ट्रम में क्या क्या ये शो करेगा? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टंगस्टन का ये कॉम्प्लेक्स है, आप जब इसका फ्लोरीन 19 एनएमआर स्पेक्ट्रम करोगे तो ये क्या शो करेगा, ठीक है? इसके रेस्पेक्ट में क्या 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 कंक्लूजन्स निकलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब हम फ्लोरीन 19 एनएमआर के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, when we are discuss about the fluorine 19 NMR spectroscopy, तो मैं अगर बात करूं तो आप लोगों को ये पता है कि फ्लोरीन 19 का जो नेचुरल अबेंडेंस है वो 100% है और जो आई की वैल्यूज है वो 1/2 है। ओके, सिमिलरली जब मैं टंगस्टन के बारे में बात करता हूं तो टंगस्टन 183 जो है ये कि इसके लिए जो आई की वैल्यूज होती है, वैल्यूज ऑफ आई जो टंगस्टन 183 के लिए होती है, इसकी वैल्यूज होती है क्या? 1/2, ठीक है? और इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो कितनी है? 14%। 14% एग्जिस्ट करता है। गुड इवनिंग रवीना। 14% इसकी नेचुरल अबंडेंस है। व्हाइल व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट टंगस्टन 184, तो इसके लिए अगर आई की वैल्यूज की बात करें तो आई की वैल्यूज 0 है, जिसकी नेचुरल अबंडेंस क्या है? 86%। वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल अबंडेंस। ओके, ये नेचुरल अबंडेंस है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यही उठा के दे देगा कॉम्प्लेक्स और इसके रेस्पेक्ट में जो है क्या दे देगा आपको? आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि टंगस्टन के इस कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो टंगस्टन 6 के बारे में अगर आप बात करते हो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है? अगर मैं सारे फ्लोरीन के बारे में बात करूं तो सारे फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो सब फ्लोरीन है, सभी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट्स क्या है? वो इक्वल है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट ड्यू टू लो नेचुरल अबंडेंस ऑफ टंगस्टन 14, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो रिस्पॉन्सिबल है स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है? इसकी नेचुरल अबंडेंस लो है तो डेफिनेटली ये क्या देगा? सैटेलाइट पीक देगा। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा तो। विद रेस्पेक्ट टू नेचुरल अबंडेंस के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर आप लोग कल क्लास में जो जो प्रेजेंस रहा होगा उसके लिए उसको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं रहा होगा वो एक बार वो पीछे का लेक्चर जरूर देख लेगा। ओके, तो अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स के बारे में तो ये क्या शो करेगा? अगर आपका इसके बारे में बात करें, बताइए। हाँ जी, बोलिए, क्या शो करेगा? सिंगलेट क्या शो करेगा? ये फ्लोरीन 19 में सिंगलेट सिग्नल, सिंगलेट सिग्नल, सिग्नल विद व्हाट?
कितनी नेचुरल अबेंडेंस है इसकी? 14% ना, तो 14% डबलेट सैटेलाइट के साथ। किसके साथ? डबलेट सैटेलाइट के साथ। ये इसके रेस्पेक्ट में जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगा। डबलेट सैटेलाइट किस वजह से? लोअर नेचुरल अबेंडेंस होने की वजह से। सैटेलाइट पीक के बारे में बात करें तो कल हम लोगों ने सैटेलाइट पीक के बारे में डिस्कशन किया था। सैटेलाइट सिग्नल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 1H सिग्नल, या जो भी आपका है जिसकी नेचुरल अबेंडेंस क्या होती है, ज्यादा होती है उसके रेस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा? 1H NMR, जब हम फ्लोरीन 19 NMR जब इसका करेंगे तो ये क्या शो करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान जाओ आप। ये ध्यान रखना है आप इसके बारे में, इसको तो एकदम पूरा चाहे जैसे भी समझ जाइयो एकदम, क्योंकि इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये आपका दो जगह भी पूछ सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके बारे में, इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इनकी नेचुरल अबेंडेंस क्या है? लोअर है, तो इसकी वजह से जो है इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब क्या शो करेगा? सिर्फ सैटेलाइट पीक शो करेगा, सिंगलेट शो करेगा 6 के 6 फ्लोरीन विद 14% डबलेट सैट। ओके, एक सैटेलाइट पीक शो करेगा 14%, बिकॉज 86% तो इनएक्टिव होंगे। जो एक्टिव होगा इसका सिर्फ 46% अमाउंट जो होगा वो एक्टिव होगा। ठीक है, अगर मैं 1000 मॉलिक्यूल लेता हूं तो 1000 मॉलिक्यूल्स में अगर आप बात करोगे तो 860 मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपके क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। लेकिन जो आपके 140 मॉलिक्यूल इसके होंगे वो क्या होंगे? वो सैटेलाइट पीक शो करेंगे। ठीक है भैया? हाँ जी कलाकारों, क्लियर है कि नहीं है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब हम थोड़ा सा अभी तक क्या डिस्कशन कर रहे थे? अभी तक देखिए दो न्यूक्लियर के बारे में ही डिस्कशन किए हैं। दो न्यूक्लियर जो हो उन्हीं के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिस मॉलिक्यूल में क्या हो, जिस मॉलिक्यूल में आपका क्या, लास्ट वाला कहाँ पे गया जहां से स्टार्ट? एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वन टाइप ऑफ कंसंट्रेट एंड वन टाइप ऑफ डाइल्यूट के रेस्पेक्ट में बात किया था। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने फिर बात की, जैसे यहाँ पे भी डाइल्यूट कंसंट्रेट के रेस्पेक्ट में बात किया। यहाँ पे एक्चुअली में क्या किया, यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियस हैं। दोनों टाइप के न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो दोनों कंसंट्रेट न्यूक्लियस हैं, मतलब टू स्पिन पैटर्न्स के बारे में बात की। अभी तक आप देखो तो यहाँ पे भी क्या था आपका? टू स्पिन पैटर्न्स था। ठीक है, और इस एग्जांपल में भी बात कर रहे हैं तो टू स्पिन पैटर्न्स के बारे में ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा टफ करते हैं अपने इसको। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूल हैविंग थ्री टाइप ऑफ स्पिन पैटर्न। ओके, इसके रेस्पेक्ट में आप बात करोगे और स्प्लिटिंग को आइडेंटिफाई करोगे। तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूल हैविंग व्हाट? टू टाइप ऑफ टू टाइप ऑफ थ्री स्पिन पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। टू टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई and one type of dilute and one type of dilute nuclei। भाई हम एनएमआर में आपको कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ये आप जान जाओ। आपकी पूरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपसे जहां जहां क्वेश्चन पूछने का चांसेस है ना, ऑनलाइन जाके चेक करना। इतना एनएमआर कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको अभी तक। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इससे ज्यादा एनएमआर पूछता भी नहीं है, उतना पढ़ा देंगे जितना अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर लोगे और ये नोट्स अगर आप बना रहे होगे, ये नोट्स अगर आप क्लियर रखोगे तो आप एनएमआर का आने वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। चाहे वो ऑर्गेनोमेटलिक से रिलेटेड होगा, चाहे आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा, चाहे जिस तरह एनएमआर का आएगा तो आप कर लोगे, चाहे वो कार्बन 13 का है चाहे किसी का भी है। बिकॉज आप देख रहे हो कि आप हर तरह का क्वेश्चन कर रहे हो।
तो आप ये ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल हैविंग टू टाइप ऑफ कंसंट्रेट न्यूक्लियाई एंड वन टाइप ऑफ डाइल्यूट न्यूक्लियाई। इसके लिए जो पहला एग्जांपल है वो कौन सा है, CH2F2 के बारे में बात करें। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बारे में बात करूं, अगर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, जब इस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके स्प्लिटिंग पैटर्न को आप समझिएगा। फ्लोरीन 19 की नेचुरल अबेंडेंस क्या है, 100%। इसके लिए आई की वैल्यू क्या है, हाफ। ठीक है, और कार्बन 1H के बारे में आप जान ही रहे हो, इसकी भी नेचुरल अबेंडेंस क्या आपकी 99%, 99 पॉइंट समथिंग, 98.9%। नेचुरल अबेंडेंस क्या है, हाफ, मतलब नेचुरल अबेंडेंस या स्पिन की वैल्यू हाफ है। कार्बन 13 के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी नेचुरल अबेंडेंस क्या है, 1.1%। मतलब ये आपका क्या है, डाइल्यूट न्यूक्लियाई है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई, ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई। तीन तरह के स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग इस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1H NMR के बारे में, 1H NMR के बारे में बात करूं तो 1H NMR में ये क्या शो करेगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए सिंगलेट, ठीक है, ऑप्शन बी डबलेट, ऑप्शन सी ट्रिपलेट, ऑप्शन डी डबलेट एंड ट्रिपलेट। कमेंट करिएगा आप सभी लोग, तो इसका बताइएगा इसके रेस्पेक्ट में क्या है, 1H NMR में कौन सा सही है। कमेंट एवरीवन फास्ट, क्या क्या शो करने की प्रोबेबिलिटी है 1H NMR में, विदाउट एनी प्रॉब्लम। कमेंट एवरीवन फास्ट, ओके, कमेंट करिए आप लोग, विदाउट एनी प्रॉब्लम कमेंट करिएगा आप लोग फटाफट। क्या सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा इसके लिए। ठीक है, हाँ जी भाई लोग कमेंट करो फटाफट। यस, कमेंट 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 कमेंट। ठीक है, sir, dilute and concentrate nuclei, how I defined, I confused on the basis of natural abundance। ये बच्चा, आप लग रहा है क्लास में नहीं थे, कहाँ गए ये, इस बेस पे इधर आ जाओ। आपने क्लास छोड़ी है, इसका मतलब अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आपने क्लास छोड़ी है। ये इधर, ठीक है, ये पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है मैंने सारा, ये डाइल्यूट, ये कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई, ये पारुल, ये पारुल आपके लिए है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन जो है बच्चा वो दूर हो जाएगा। तो चलिए, हाँ किसी ने कमेंट नहीं किया भैया, ए बी सी डी ऑप्शन में से किसी ने कमेंट नहीं किया, ये गलत बात है। आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, कमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 1H NMR से बात कर, ठीक है, तो 1H NMR से अगर मैं बात करूं तो 1H NMR की कपलिंग, इस प्रोटॉन की कपलिंग किसके किसके साथ हो सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट भैया व्हाट, ये जो प्रोटॉन है दोनों क्या है, इक्वल है। कपल किसके साथ करें, कार्बन 13 का नेचुरल अबेंडेंस क्या होता है, लो होता है, इसके साथ कपलिंग होगी नहीं। कपलिंग किसके बीच में होगी, कपलिंग जो होगी किसके साथ होगी, फ्लोरीन के साथ कपलिंग होगी। किसके साथ कपलिंग होगी, फ्लोरीन के साथ जो है कपलिंग होगी। कितने फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन है।
तो ये जो दो प्रोटॉन है, ये जो 2H है, 2H कपल करके क्या शो करेंगे? 2H जो है ये कपल करके 2H 2F के साथ कपल करेंगे, और जो कपलिंग होगी क्या होगी? टू बॉन्ड कपलिंग बिटवीन H एंड F। दो फ्लोरीन है, अजी भैया, दो फ्लोरीन है, तो जो दो H का मिलेगा वो क्या? N+1, मतलब 2+1 मिलने के चांसेस। और 2+1 का क्या मतलब? वो ट्रिपलेट मिलेगा। मुझे पता था कि आप होगे कंफ्यूज, इसीलिए बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया। सिंगलेट नहीं, ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट। 1H में दो प्रोटॉन के ये क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। इन 1H टू एच विल बी शो व्हाट? टू बॉन्ड कपलिंग विथ H एंड F। N+1 रूल अप्लाई करोगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ F? टू नंबर्स ऑफ F, 2+1 क्या शो करेगा? A। ये ट्रिपलेट। सही आंसर क्या होगा? C, ये ट्रिपलेट। हाँ जी, क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर है कि नहीं? अरे बताइए भैया, क्लियर है? ठीक है। विकेट गिर गया भाई। हाँ जी, आया ना? कंफर्म? यार ये कमेंट नहीं आते, इतने स्लो, स्लो क्यों चलता है ये? कंफर्म क्या शो करेगा? ये ट्रिपलेट। थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो स्लो है। जब मैं फ्लोरीन 19 के बारे में बात करूंगा, F19 में क्या शो करेगा? ऑप्शन ए सिंगलेट, ऑप्शन बी डबलेट, ऑप्शन सी ट्रिपलेट, ऑप्शन डी। ये बता दो आप, फ्लोरीन 19 में क्या शो करेगा? अच्छा फिर से, ओके। देखो बच्चा, ये दो प्रोटॉन है, दो 1H हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, और ये दो फ्लोरीन इन इक्विवेलेंट हैं, कार्बन के साथ कपलिंग नहीं होगी। 1H, 1H नॉट कपल विथ, नॉट कपल विद what? कार्बन। वाई? बिकॉज कार्बन 13 की क्या है? लो अबंडेंस है, लो अबंडेंस है। ओके, कैसी अबंडेंस? नेचुरल अबंडेंस की बात कर रहे हैं। तो 1H कैन बी कपल विथ व्हाट? कपल विथ किसके साथ कपल करेगा? कपल विथ फ्लोरीन। यही डिफरेंट है ना, फ्लोरीन के साथ। कितने फ्लोरीन है? दो फ्लोरीन है। दो हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट इक्वल है, तो फ्लोरीन के साथ जब कपल करेगा तो क्या दो फ्लोरीन तो 2+1 ना, क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। जो कपलिंग होगी कितने बॉन्ड डिस्टेंस? 1, 2 बॉन्ड डिस्टेंस। 2 बॉन्ड डिस्टेंस कपलिंग बिटवीन H एंड F। N+1 किया, 2+1 दिखा के आपको ट्रिपलेट समझाया। क्लियर है अब? यस। एंड फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। वेरी गुड पारुल। आरजू अब क्लियर है? वेरी गुड पारुल। ओके, फ्लोरीन 19 के बारे में भी बात करेंगे तो क्या शो करेगा? ये ट्रिपलेट शो करेगा। फ्लोरीन 19 के साथ भी क्या करेगा? ट्रिपलेट शो करेगा। अब अगर मैं बात करूं कार्बन 13 में, कार्बन 13 में क्या शो करेगा? कार्बन 13 में क्या शो करेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डबलेट ऑफ डबलेट, ऑप्शन बी ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, ऑप्शन सी सिंगलेट, ऑप्शन डी डबलेट। इसमें कमेंट करिए आप।
किसके बारे में आपको कमेंट करना है? आपको कमेंट करना है इसके बारे में, ठीक है? कार्बन 13 के बारे में कमेंट करना है। कार्बन 13 में क्या शो करेगा इसमें बताइएगा, क्या शो करेगा एवरीवन? और ये आपका क्या हो गया, 1H का हो गया, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए सभी एस्पायरेंट्स का। और ये आपका क्या हो गया भैया, ये हो गया फ्लोरीन 19 का। क्लियर है? कंफर्म है ना? कार्बन 13 का बताइए, कार्बन 13 के रेस्पेक्ट में क्या सही होगा? बताइए बताइए, आंसर क्या होगा कार्बन 13 के रेस्पेक्ट में? कमेंट एवरीवन। बाकी सभी लोग आज गए कहाँ? बताइए भैया। आरजू, सोनम, सोनम ने कहा बी। यस यस यस। व्हाट इज द राइट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 13? ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। कार्बन 13 दो H के साथ कपल करेगा, क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। एंड दो F के साथ कपल करेगा, क्या शो करेगा आपका? क्या शो करेगा आपका? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट शो करेगा। थ्री स्पिन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मजेदार क्वेश्चन। नया सीखे कि नहीं सीखे? बोल दियो। नया कुछ सीखे आप लोग कि नहीं सीखे? अगला बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर मॉलिक्यूल। इसके बारे में बात करते हैं। अब आप इसे फटाफट कर लोगे। CH3 CF3। आपको बताना है क्या, 1H में बात करना है, क्या शो करेगा, ठीक है? और आपको बताना है किसमें, कार्बन 13 में क्या शो करेगा, और आपको बताना है किसमें, 1H में क्या शो करेगा, कार्बन 13 में क्या शो करेगा, एज वेल एज अगर मैं बात करूं उसके साथ साथ नहीं, ये इसमें तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बताओ, इसमें थोड़ा सा आसान दे, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कार्बन, कार्बन H, H2F, और यहां पे क्या, H2F। इसको आपको बताना है। और फ्लोरीन 19 में क्या शो करेगा, ठीक है? इसके रेस्पेक्ट में बताना है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। 1H में आपके लिए ऑप्शन है डबलेट, ऑप्शन बी सिंगलेट, ऑप्शन डी ट्रिपलेट, ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन डी डबलेट ऑफ डबलेट। सेम ऑप्शन जो है आपके किसके लिए है, यहाँ पे भी आपके लिए क्या है, फ्लोरीन 19 में बात करते हैं तो फ्लोरीन 19 के लिए ही भी बात कर लेते हैं हम लोग। फ्लोरीन 19 में क्या शो करेगा ये, ठीक है भैया? फ्लोरीन 19 में क्या शो करेगा ये, ट्रिपलेट, ठीक है? बी ए, बी डबलेट, सी सिंगलेट, डी डबलेट ऑफ डबलेट। बताइयो। और कार्बन 13 में क्या शो करेगा, कार्बन 13 में क्या शो करेगा ये आपका, ए ट्रिपलेट, बी सिंगलेट, डी सी डबलेट, एंड डी डबलेट ऑफ डबलेट। बताओ भैया क्या होगा सही? फटाफट आप कमेंट करोगे तीनों के रेस्पेक्ट में, 1H के रेस्पेक्ट में, कार्बन 13 के रेस्पेक्ट में, कार इसके रेस्पेक्ट में भैया, फ्लोरीन 19 के रेस्पेक्ट में। कमेंट करिए फटाफट। हाजी कलाकारों, ये देखो, ये भैया जो कंटिन्यू क्लास में रहेगा ना उसी को समझ में आएगा, बाकी लोगों को तो हवा नहीं लगेगी कि चल क्या रहा है, ठीक है? बट ये अगर आप यहाँ से क्लासेस कर लेंगे, NMR की बस आपको प्रैक्टिस करनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है।
फिर हम बात करेंगे और न्यूक्लियाई के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। क्या? 1H में डबलेट, 1H में डबलेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसने कमेंट किया? 1H में डबलेट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस, 1H में क्या शो करेगा? डबलेट। कार्बन 13 में क्या शो करेगा? कार्बन 13 में क्या शो करेगा? अरे हाँ, कार्बन 13 में क्या शो करेगा? कार्बन 13 वाला ऑप्शन भी गलत है भैया। कार्बन 13 वाला ऑप्शन एक गलत है। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी। यहाँ जल्दी जल्दी में मैंने ऑप्शन लिखा नहीं। ठीक है, माफ करिएगा आप लोग। यहाँ एक क्वार्टेट लिख लो आप कार्बन 13 में। ठीक है, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट भी लिख लो, एक डबलेट ऑफ ट्रिपलेट लिख लो, या डबलेट ऑफ डबलेट सही है। ठीक है, कार्बन 13 में डबलेट, डबलेट, डबलेट। देखो 1H की बात करें तो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है, जब आप 1H में बात करोगे तो कपलिंग किसके साथ होगी? कपलिंग जो होगी किसके साथ होगी? सिर्फ फ्लोरीन 19 के साथ होगी। दोनों इक्विवेलेंट है। फ्लोरीन 19 के साथ एक ही फ्लोरीन है, ये भी इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट, तो क्या शो करेगा? डबलेट। ठीक है, कार्बन 13 के बारे में बात करें तो दोनों कार्बन क्या है? आपके इक्वल हैं। प्रोटॉन के साथ कपल करके क्या शो करेगा? 1H के साथ कपल करके क्या शो करेगा? कपलिंग विथ 1H के साथ कपल शो करके क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। एक फ्लोरीन है तो फ्लोरीन 19 के साथ कपल करके क्या शो करेगा? डबलेट। ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, डबलेट एंड ट्रिपलेट। ठीक है, और जब आप बात करोगे फ्लोरीन 19 में, फ्लोरीन 19 में बात करोगे जब आप, तो दो प्रोटॉन है तो इन्हीं के साथ कपलिंग होगी। 1H के साथ कपल करके क्या शो करेगा? आपका ट्रिपलेट। क्या शो करेगा? ट्रिपलेट। क्लियर है? हाँ या ना? बोलिए बोलिए, क्लियर है ना? कंफर्म? डन? ओके, अगला आप मॉलिक्यूल करोगे। अगला आपके लिए है CH3 एंड CF3। इसका 1H में बताना है और किस में बताना है? फ्लोरीन 19 में बताना है और किस में बताना है? कार्बन 13 में बताना है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बताना है सभी लोगों को। 1H में बताना है और किस में बताना है? आपका इसमें बताना है। कंफर्म है ना? ठीक है, ओके। 1H में अगर हम बात करेंगे तो 1H में ये तीन प्रोटॉन तीन फ्लोरीन के साथ कपल करके क्या शो करेगा? आपका क्वार्टेट। फ्लोरीन 19 में बात करेंगे तो फ्लोरीन 19 में ये कपल करके क्या शो करेगा? आपका इसके साथ क्वार्टेट। और जब कार्बन 13 में बात करेंगे तो कार्बन 13 में दोनों कार्बन का क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट इक्वल इक्वल है कि डिफरेंट डिफरेंट है?
ठीक है, अगर हम जब बात करेंगे इसके बारे में तो ये क्या कप करेगा, इसके साथ कपल करेगा, दो सिग्नल शो करेगा, एक CH3 का क्या शो करेगा, क्वार्टेट, और एक CF3 का क्या शो करेगा, क्वार्टेट। क्लियर, हाँ या ना? कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, इंटरनेट स्लो चल रहा है कि क्या दिक्कत है? बहुत स्लो चल रहा है ये, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। फाइनल, क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक बचता है क्या, क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई के रेस्पेक्ट में। मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमने नॉन क्वाड्रापोल के बारे में बहुत डिस्कशन कर लिया। अभी इससे रिलेटेड जो थोड़ा कुछ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेशन के लिए रहेंगे हमारे, खत्म होने के बाद इनका प्रैक्टिस सेशन, और OMR का जो प्रैक्टिस, अरे क्या कहते हैं, OMR कह रहे हैं यार, NMR का और OMC का जो प्रैक्टिस सेशन है वो साथ ही होगा। ठीक है, दोनों एक साथ पैरेलल चलेंगे, पार्टिसिपेट करिएगा आप लोग, बहुत मजा आने वाला है उसमें। देखिए अभी तक हमारा जो जितना डिस्कशन चल रहा था किसके बारे में, स्फेरिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, स्फेरिकल या नॉन क्वाड्रापोल। हमने इन न्यूक्लियाई से रिलेटेड पूरा बात किया। ठीक है, ये जितने भी डाइल्यूट और कंसंट्रेट हैं इनसे रिलेटेड जो है पूरा डिस्कशन किया है ना, इन्हीं से रिलेटेड जो है पूरा डिस्कशन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है, अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो किससे होगा, क्वाड्रापोल के रेस्पेक्ट में। अब ये न्यूक्लियाई के बारे में बात करना है जिस वाले केस में आई की वैल्यू क्या होगी, एक हाफ से ज्यादा होगी। मीन्स ये न्यूक्लियाई बाहर निकल गए, अब हमारा जो डिस्कशन होगा आई की वैल्यू हाफ से ज्यादा होगी, इनके रेस्पेक्ट में डिस्कशन। नॉन स्पेरिकल न्यूक्लियाई या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे। क्या डाउट है आपका, क्या नाम है, आरजू का कुछ डाउट है सर, फ्लोरीन 19 में क्वार्टेट कैसे है? अरे रुक जाओ बच्चा, देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, क्वार्टेट ही होगा भाई, देख लेते हैं मॉलिक्यूल कहाँ है। यस 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 यस, अरे फ्लोरीन 19 में बच्चा ये जो आपका तीन फ्लोरीन है ये तीन हाइड्रोजन के साथ ही कपल करेगा ना, और तीन हाइड्रोजन के साथ कपल करके N+1 वैल्यू से क्वार्टेट देगा ना। जिस तरह से हाइड्रोजन कर रहा है उसी तरह से आपका फ्लोरीन भी करेगा। कार्बन के बारे में बात करेंगे तो ये कार्बन अलग, ये कार्बन अलग, CH3, और ये आपका क्या, CF3, ये दोनों आपस में कपल करके क्या देंगे, क्वार्टेट क्वार्टेट देंगे। क्लियर है आरजू? हाँ जी आरजू, कंफर्म है? ठीक है, तो चलिए नाउ अब अगला डिस्कशन जो है क्वाड्रापोल न्यूक्लियाई के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, अब हम बात करेंगे थोड़ा क्वाड्रापोल न्यूक्लियाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्वाड्रापोल न्यूक्लियाई से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ये कर लोगे आप तो आप क्वाड्रापोल में नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, ड्यूटेरियम के बारे में बात करेंगे, ज्यादातर हमारा ड्यूटेरियम और नाइट्रोजन से रिलेटेड डिस्कशन होगा सबसे ज्यादा। और हम लोग एक्सियल नॉन एक्सियल मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, बोरॉन के NMR के बारे में बात करेंगे, मतलब बोरॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका मेन ग्रुप वाला वो इधर भी आने वाला है आपका। वो जो NaBH4 वोर का पूछ नहीं लेता है कि कितना सिग्नल शो करेगा क्या, वो सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे ही वो डिस्कशन खत्म होगा आपका NMR कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ फिनिश, आप NMR में कुछ नहीं छोड़ रहे हो, ये जान जाओ। जो छूटा होगा उसको हम करेंगे कैसे खत्म, उसको करेंगे अपने तर्कस के तीर में इस्तेमाल करके। तर्कस का तीर क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तर्कस के तीर में इस्तेमाल करके जो है इसे खत्म करेंगे।
लेकिन ये क्लास यहीं तक रखते हैं। आपसे 5:15 5:30 बजे भी मिलना है तो 5:30 बजे मिलते हैं कैरुथर के चैप्टर 5 के साथ। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा हम भी ब्रेक ले लें। ओके, तो 5:30 बजे मुलाकात होती है। पार्टिसिपेट करिए आप आउटसाइड बैचेस में सभी लोग, ठीक है। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। बाय बाय, टेक केयर।